Greetings to you from my church in Haywood, California. In fact, it's California, Nevada district. We fall under California, Northern California, Nevada district with the Assemblies of God. So, thank you, sir. I live in Haywood. Haywood is about 30 minutes drive from San Francisco Airport. And I have a church. It's a mixed church. Indians from Fiji, from India, Punjab, Bombay, plus other parts of the world. During the COVID, during the COVID, the number went down because the buildings were closed, and a lot of people had migrated. But now it's opening up. They're coming back. मैं यूएस के प्रदेश से हूँ और मेरे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं और मैं कोविड के समय में कुछ लोग गए थे लेकिन अब लोग वापस आ रहे हैं. By profession, I'm a trained teacher. I teach high schools, but I'm a preacher. God has given me a task to preach the message, and because teaching gives me a lot of time to do God's work. मैं एक जो है लाइसेंस्ड अध्यापक हूँ. मैं जो है स्कूलों में सिखाता हूँ लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को भी सिखाता हूँ. God has mightily used me in this area to teach and preach. और परमेश्वर ने जो है इस विभाग में जो है मुझे बहुत आयत से जो है उपयोगित किया है जहाँ पे मैं लोगों को सिखा सकता हूँ और मैं प्रचार भी कर सकता हूँ. Before I became a Christian, I was doing things in the world that was my interest, but that was not okay in the eyes of God. मेरे मसीह होने के पहले या मसीह मार्ग में आने से पहले जो है मैं दुनियादारी चीज़ों में ज़्यादा जो है व्यस्त था लेकिन वो परमेश्वर के लिए जो है कभी खुशी नहीं ले आते था. I used to play music. I'm a guitarist and a keyboard player and a piano player. मैं एक गिटारिस्ट हूँ और एक कीबोर्ड प्लेयर और एक पियानो प्लेयर भी हूँ. For a number of years, I played the top group in downtown Suva. It was the group called the Empire Old Boys. The boys were still young, but the name was Empire Old Boys. और जो है मैं मेरे जवानी में जो है मैं वहाँ पे एक मशहूर जो है एक जो है बैंड के साथ मैं प्ले किया करता था. One of my friends in another group, he used to witness to me about Jesus. और दूसरे एक बैंड का जो एक मेरा मित्र था वो हमेशा जो है मसीह के बारे में मेरे साथ जो है शेयर करता था. He is a Methodist guy, but I have no ill feelings. But he was telling me, Mr. Henry, if you give your heart to Jesus, He gonna fix your problem, man. मैं उनकी इज्जत तो रखता था और वो मुझे हमेशा ये कहते थे अगर आप परमेश्वर को यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो वो आपके जीवन को बदल सकता है. Actually, I was not interested. I was more interested in performing on the stage because I used to sing Kishore Kumar, Mukesh, Mohammed Rafi. You guys know them, right? Some of you, right? मैं जो ज़्यादा उस चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट थी वो तो म्यूजिक में थी जहाँ पर मैं मशहूर लोगों के साथ प्ले करना चाहता था. And I tell you, when you get the fame, you don't want to come down. You want to stay there. और जब आप एक बार मशहूर हो जाते हो उसके बाद आप कभी नीचे नहीं आना चाहते हो, हमेशा ऊंचाई में रहना चाहते हो. People love the style, the way I played my jazz and rock. और जिस प्रकार से मैं जैज और रॉक प्ले करता था लोग उससे बहुत जो है उत्सुक थे. But God had another plan. I did not know until something happened. लेकिन परमेश्वर के लिए मेरी जीवन में जो योजना थी वो कुछ अलग थी लेकिन वो मुझे बहुत जो है देरी से समझ में आई. I became seriously ill. और मैं जो है बहुत आयत से जो है बीमार हो गया. It seems to me that I was dying. My heart was failing. My stomach was hurting. My kidneys were hurting me. और मेरा जो है हार्ट फेल होने लगा और मेरे शरीर में और बहुत आयत जो है बीमारी पकड़ने लगी. And it seems to me that my house is getting haunted now. और अब जो है मेरे घर में जो है एकदम हॉन्टेड फीलिंग होने लगा. Somebody I could feel is moving in the house. और मुझे ऐसा महसूस होता था कि घर के अंदर और कोई ऐसे मूव हो रहा है. When I sleep, I don't want to scare you guys. When I'm sleeping, I'm in the next morning I'm on the floor. मैं आपको डराना नहीं चाहता लेकिन मैं जब सोता था मैं दूसरे दिन जब जागता था मैं जमीन में पेश आता था. I said, who put me here? और तब मैं सोचता कि मुझे नीचे किसने डाला. I'm concerned about it. और मैं उसके बारे में कुछ करने वाला हूँ. So I went. My heart said, to cut the story short, I went to my friend who told me about Jesus. और ये कहानी को मैं जो है संक्षिप्त में रखना चाहूँगा और मैं उस मित्र के पास गया जो यीशु मसीह के बारे में मुझे बांटता था. And I asked him, I said, you told me about Jesus. That if you have a problem, if nobody can fix it, come to me. So I come to you. Can you help me? और मैंने उस मित्र से कहा कि आपने तो कहा था मुझसे कि जो भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है आप यीशु मसीह के पास जाओ और वो आपके जो है एक छुटकारा दे सकता है. और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे जीवन में जो है अप्लाई हो सकता है क्या. He said, what happened? I said, well, someone did upon me witchcraft and I'm dying. And
I need help. Can you help me out? और मैंने उस मित्र से कहा कि किसने तो जो है जादू मंत्र मेरे पे किया है और मैं अब जो है बहुत मुसीबत में हूँ, क्या तुम मुझे मेरी मदद कर सकते हो? He said, Mr. Henry, you go to a church now. और तब वो व्यक्ति ने कहा कि आप एक कलीसिया में जाइए। I didn't know which church to go, but there was where this young man lives over here, Ravin. और मुझे नहीं पता था कि मैं किस कलीसिया में जाऊँ, लेकिन यहाँ पे जो भाई रवीन है उनके कलीसिया में मैं जाने लगा। He used to live somewhere, so I went there, Victory Assembly of God Church. God took me there. और मैं उस प्रदेश के जो है उस कलीसिया में जाने लगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां पर ले जा रहा था। And to cut the story short, the pastor was very happy. Anil was there, Valadan, and he said, "Yes, Henry." And he knew me, and he said, "Mr. Henry, how can I help you?" और वो पासवान अनिल जो है वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझसे देखकर कहा कि भाई हेनरी, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? That's a good way to welcome somebody in your church, right? I had so many problems, and how can I help you? I said, "Mr. Anil, please, can you pray for me? I'm in big time trouble. Can you, God, deliver me out of this situation?" ये एक अच्छा तरीका है मदद को पेश करने का। यहाँ पर वो व्यक्ति आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके जीवन में मैं कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ बदलाव कर सकता हूँ? He said, "Henry, Jesus can." और तब वो व्यक्ति ने कहा कि यीशु मसीह आपके जीवन में बदल सकता So I है। went into the church, and the pastor came towards the end of the meeting. The pastor prayed for me. और वो मीटिंग के अंत में जो है वो पासवान आकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। And he said, "Henry, if Jesus comes into your heart, this situation will change in your favor." और उस पासवान जी ने कहा कि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो आपके ये हालात को जरूर एक बदलाव होगा। I gave my heart to Jesus that day. और उस दिन जो है मैंने अपने दिल को जो है मेरे हृदय को जो है मैंने यीशु मसीह के हाथ में दिया। I said, "Jesus, I am sorry, God. I sinned against God and I have sinned against heaven. I ask you to forgive me. And Lord, by faith, I invite you into my heart." और यीशु मसीह से मैंने कहा कि परमेश्वर, मैंने आपसे और दूसरों से जो है मैंने पाप किया और मैं आज जो है उससे माफी मांगता हूँ और मैं और आपके जीवन में आपको मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ। And the minute I said, "Come into my heart," और जिस क्षण में मैंने कहा कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आइए, I had a physical encounter with Jesus face to face. और वहां पर जो है परमेश्वर के साथ जो है आमने सामने से जो है एक जो है एनकाउंटर हुआ His यीशु मसीह के साथ। hand just came right over me. और उनका हाथ जो है मेरे ऊपर आने जैसा महसूस हुआ Oh, brother, that changed my entire life. और वो मेरे पूरे जिंदगी को बदल दिए। I got so excited, और मैं बहुत ही उत्सुक हुआ full of joy. और मेरे अंदर पूरे जो है आनंद के साथ भरा हुआ। And I came home. I have a big family called Nuclear Extended Family. और मेरे जो है मेरा परिवार जो है बहुत ही एक बड़ा परिवार है। 5 brothers, 7. 7 brothers, 5 sisters. इतना बड़ा परिवार है कि मेरे पास सिर्फ 7 भाई और 5 बहनें हैं। How many altogether? How many altogether? He is listening to me. Thank you, sir. I'm just kidding. I'm kidding. You're a wonderful man. Hey guys, listen to me well, okay? You're gonna get a wonderful message today. आप जो है मेरे संदेश को जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। And they are saying, "What happened to you? Why are you acting and behaving like this?" और वो सभी भाई बहन मुझसे पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है और इस प्रकार क्यों आप बर्ताव कर रहे हो? I'm feeling that fire inside me is jumping. I'm full of joy. And I said, "My God, I found Jesus." मेरे अंदर जो है वो परमेश्वर को मिलने की जो खुशी थी उसके कारण मेरे अंदर दिल उमड़ रहा था। And these people don't know God. They had no religion. And I was part of it. But now I'm changing to the real true God, Jesus. ये लोग जो है उस धर्म को जानते थे, वो कोई एक धार्मिक तो थे, लेकिन वो इस यीशु मसीह को नहीं जानते थे। Guys, I'm not condemning anyone's religion. Here's what I want to tell you. They are not understanding what happened to me. और ये लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे जीवन में क्या हुआ था। But finally, I told my mother, but my mother said, "Son, you do what you want to do. If you're happy there, keep going." और मेरी माताजी से मैंने इस बात को बांटा तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम्हारे दिल में सही लगता है, जो तुम्हें खुशी देता है, उस रास्ते में तुम चले जाओ। And the other half, my wife said, "Henry, very good. You keep going to church. Now you'll be a good man. People who go to church, they become good people." She was fed up with me. और मेरा दूसरा भाग जो है वो हमेशा मुझसे कहती थी कि आप कलीसिया में जाओ, वहाँ पे आप अच्छे रहोगे, क्योंकि जो भी कलीसिया जाता है वो अच्छा हो जाता है। So, every wife wants a good husband, right? So you'll be a good husband. Now you keep going to church. I won't stop you. Keep और going. मेरी बीवी कहने लगी कि आप एक अच्छे पति बनकर जो है कलीसिया में जाओ, एटलीस्ट मेरा सर दर्द कम हो जाए। I told her, "You also come." He said, No, you keep going. और मैंने उनसे पूछा कि आप भी चलो मेरे साथ। Or just to make me happy, the next week she also came.
और उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो है वो भी कलीसिया आने लगी मुझे खुश करने के लिए। And when she gave her heart to Jesus, she got touched by the power of the Holy Spirit. और जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो उनके जीवन में भी जो है पवित्र आत्मा काम करने लगी। Oh my God! And she's speaking an unknown tongue. She's got baptized in the Holy Spirit. I said, what happened to you? और जब वो पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करने लगे और मैं उनसे पूछने लगा कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, And she's weeping and tears. I said, Henry, something's happening to me. और मैं वहां पर वो बोलने लगी कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है। You know, God changed both of us. और तब परमेश्वर ने हम दोनों को जो है पूरी तरह से बदल दिया। Ever since then, we are serving God, brother. और तब से जो है हम परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। Now I'll tell you the other part of the story. और अब मैं जो है कहानी के दूसरे भाग को आपके साथ बांटता हूँ। The sickness in my body, the heart problem, जो मेरे अंदर वो बीमारी थी, जो मेरे हृदय का जो है बीमारी था, my kidney problems, और मेरे किडनी का जो प्रॉब्लम my था, leg, my back, मेरे पैरों की जो समस्या, जो पीठ की समस्या, eating disorder. जो वे खाने में जो है बदलाव आना, I could not eat spices. और मैं जो है तीखे चीजों को नहीं खा सकता था, Acute gastritis. और मैं जल्दी से थक जाता था, I couldn't breathe properly because of acute sinus. और मैं जो है अच्छी तरह से जो है श्वास ले नहीं सकता था साइनस के कारण, My head was bursting in constant pain. और मेरा सर जो है फटता था जो है दुखने के कारण। One by one, Jesus Christ removed all of it. और एक क्षण में जो है परमेश्वर ने वो सारी चीज़ को Everyone बदला left my दिया। body. परमेश्वर- Everything left me. And today I'm totally healed. और आज मैं जो है पूरी तरह से चंगाई प्राप्त कर आपके सामने खड़ा हूँ। And there was a time when the demons gonna attack me, I'll run the other side. और एक समय था जब शैतान जो आकर जो है मेरे अंदर जो है मुझे डराता था। You know, I was brought up in streets. I could fight. I could knock people down because that's the way I was raised up. You know, क्योंकि मैं जो है ऐसे जो है ट्रेन था कि मैं लोगों को जो है गिरा सकता था। I was trained in martial arts, but I quit. But when the demons come, I could not do nothing about it. लेकिन जब दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आती थी तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था, I run the other side. और मैं उनके साथ चले जाता था। But now when the Holy Ghost came over me, लेकिन जब अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर आई, he don't want to come close to me now. अब वो जो है दुष्ट आत्मा मेरे सामने नहीं आ He सकती, runs the other way around. और वो मैं जो है उनको डरा कर भगाता हूँ। Because Jesus, by the power of the Holy Spirit, lives in me to overcome him. क्योंकि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के जो है सामर्थ्य के साथ मेरे अंदर जो है पेश आती है ताकि मैं उस दुष्ट आत्मा को भगा सकता हूँ। Today I cast out demons. और मैं जो है आज जो है दुष्ट आत्मा को भगा सकता हूँ, No matter how powerful it is. चाहे वो कितनी भी जो है सामर्थ्य हो। Jesus said, in my name you'll cast out demons. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम पे जो है दुष्ट आत्मा को जो है भगा दोगे। On Friday night, somewhere in, what is the place? Manukau. Somewhere there, one man came in my meeting. I said, oh my God, I said, Lord, you're going to come out now. And within a few seconds, that thing left. और शुक्रवार शाम को जो है मनिकाओ के प्रदेश में जो एक भाई जो है दुष्टात्मा पीड़ित था, वो मेरे सामने आया और मैंने जो है यीशु मसीह के नाम पे उनको भगा दिया। Jesus did that. The work was done by Jesus. I give glory to him, but he used me for this purpose. और मैं जानता हूँ कि ये जो काम हुआ है वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उपयोगित किया। And then God spoke to my heart very plain and very clear. और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा मेरे दिल में बात करने लगी बहुत ही शांत रीति से। This was after I was born again. और मैं जो है मसीह में के रास्ते में आने के बाद की बात है। I had spent many hours in prayer. और मैं जो है प्रार्थना में जो है कई घंटों को बिताता था। Sometimes half day, sometimes full day, sometimes all night I'll pray. कई बार आधे दिन, कई बार पूरी रात को, कई बार पूरे दिन बैठकर जो है मैं परमेश्वर के सामने बैठता था। People say, Henry, how did you find time? I have to find time to do God's business. और लोग मुझसे पूछते थे कि तुम अपने आप को जो है इतने समय को कैसे जो है पा लेते हो, तो मैंने कहा कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए समय ढूंढना बहुत जरूरी है। And I did my own study and research on the Bible. और मैं जो है वचन को खुद से पढ़ने लगा। Later on, I went to Bible college to study more. और जो है उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज में जाने की कोशिश की जो ज्यादा पढ़ सकता हो। But I had an intense desire to save him. लेकिन मेरे अंदर जो है वो एक डिजायर थी कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को करूं। And then I'm preaching in other parts of the world. और मैं जो है अब दुनिया के दूसरे भागों में प्रचार कर रहा था। When people came with their sickness and disease, और जब लोग अपने बीमारी के साथ मेरे सामने आते थे, I trust him to deliver them. और मैं परमेश्वर पे आश्रित था ताकि इनको चंगाई दे सकूं। I pray, I fast, I wait upon him. मैं प्रार्थना करता था, उपवास करता था कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं। And God delivers people. और परमेश्वर वहां पे लोगों को छुटकारा देते हैं। I'll just share a few testimonies how people got delivered out of sickness. और मैंने लोगों को देखा है जो गवाही देते हैं, जो पूरी तरह से अपनी बीमारी से जो है मुक्त हो गए थे। Back in US, one lady came with HIV positive. और जो है यूएस में जब एक लेडी मेरे सामने आई थी जो HIV पॉजिटिव थी, And she's crying. I said, what happened? She said, और वो रोने लगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ?
Pastor, I got HIV positive. और तब वो बहन ने कहा कि मुझे HIV पॉजिटिव है। I said, I'm going to pray for you. And I told a certain thing that you should do. और मैंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको खुद से करना है। I prayed for her. After one month later, she came back. और मैं प्रार्थना करने लगी और उसके 1 महीने बाद वो वापस मेरे पास आई। This Pastor Henry, thank you, Pastor. I said, what happened? No more HIV is now negative. और तब वो सिस्टर आकर मुझसे कहने लगी कि सिस्टर भाई पासवान जी, मैं जो है अभी HIV नेगेटिव Jesus has healed me. और यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है। Another lady came with stage 4 cancer. और एक स्त्री मेरे पास आई जो स्टेज 4 कैंसर के तौर पर थी। Doctors told her 3 weeks to live. और डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 हफ्ते दिए थे उनको जीने के लिए। The parents are all concerned and they called me. और वो माता पिता जो है बहुत ही परेशान थे और उन्होंने मुझसे बुलाया। I went to their house to pray. और मैं उनके घर जाने लगा और प्रार्थना करने 3 लगा। or 4 prayers. 3 या 4 बार God raised him back to life. और परमेश्वर जो है उसको वापस से जी उठाए Cancer disappeared. और उनके कैंसर उनसे दूर हट गए। Jesus said, in my name will cast out demons, heal the sick. और यीशु ने कहा कि जो है तुम मेरे नाम पे जो है दुष्ट आत्मा को भगाओगे और जो है बीमार लोगों को चंगा दोगे। In San Jose is about 30 minutes drive from Hayward. And somebody called me, said, Pastor Henry, please, I heard about you. Can you pray for my dad? मेरे रहने के 30 मिनट दूरी पर जो है एक परिवार ने मुझसे फोन किया और कहा कि क्या आप आकर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। I said, what happened? और मैंने पूछा कि क्या हुआ। Actually, he was dead. और वो जो है ऑलमोस्ट मृत्यु के पास पहुंच गए थे। But before he passed out, they put him in the machine. और जब वो मृत्यु होने से जस्ट पहले उन्होंने वेंटिलेटर वो मशीन में डाल दिया। And they told me, on Thursday, they'll pull the machine out. और वो गुरुवार के समय जो है उन्होंने वो मशीन को हटा दी। No, they are about to pull it out on Thursday. और वो गुरुवार को जो है वो मशीन को निकालने वाले थे। So I went there on Tuesday. और मैं जो है मंगलवार को वहां पर गया। I prayed for this man. और मैंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। Whole family from overseas gathered for his funeral. और जो है बाहर के जो दूर प्रदेश में जो लोग थे उनके परिवारजन थे वो लोग उनके फ्यूनरल के लिए तैयार हो रहे थे। One prayer and faith in the name of Jesus, this man opened his eyes and stood up. और एक विश्वास के साथ वाली एक प्रार्थना के कारण जो है वो व्यक्ति वहां पर आंख खोलकर उठकर खड़ा हो गया। And these people got born again. और ये सारे परिवारजन जो है वो जो है मसीह के मार्ग में आए। My friends, what is the purpose of all these miracles? So that people know who Jesus is. ये सारे चमत्कार के सिर्फ एक ही उद्देश्य है ताकि वो लोग सब यीशु को देख पाए। Today I'll pray for you too. आज मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। Whatever it is, you believe God can heal you? चाहे जो भी हो, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सुनने वाले हैं? Or whatever it is, चाहे वो कुछ भी हो, God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए जरूर कर So I'm सकता going है। to say certain things. I'll share certain words with you. और कुछ वचन से आपके सामने बांटना चाहूंगा। And if you will take note of the scripture verses, it will really help you. अगर ये वचन को आप नोट करते हो तो आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगित हो सकता है। And my title is Healing and How to Receive It. और मेरा आज का विषय ये है कि चमत्कार या फिर छुटकारा वो किस प्रकार आप उसको पा सकते हो। Everybody, please give him a loud applause. Wonderful man. Stop the music. But thank you. I love music, guys. But I want to focus on you, okay? On the word. Amen. Healing and how to receive it. चंगाई और उसको किस प्रकार से प्राप्त करें। I had talked there are about 5 or 6 lessons on this, but in my previous lessons on my YouTube, on my preaching, I had talked about hindrance to healing, how to receive it, but I'm not going to cover those areas. But today I will cover how to receive healing. करीब 5 से 6 संदेश है इस विषय के ऊपर, लेकिन आज मैं आपके सामने इस चंगाई को किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सिखाना चाहूंगा। Simple method how to receive healing or whatever you're praying for. और या फिर जो भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो या फिर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसके लिए जो है आसान तरीके क्या है। But there's one question I want to ask you. A lot of people have said, Pastor, is it God's will to heal me? एक सवाल जो है लोग मेरे से हमेशा पूछा करते हैं कि क्या ये परमेश्वर की योजना है कि मैं जो है चंगाई प्राप्त करूं। What's your response? आपका क्या कहना है? Yes. How many say yes? How many say no? How many are neutral? Okay. It's God's will to heal. How do you know it? ये परमेश्वर की योजना है और ये आप कैसे जानते हो?
Because it's in the Bible, right? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। To believe a person is to believe his word. और जो एक इंसान को जो है विश्वास करना उनके वचन को विश्वास करने के तौर पर है। If I tell Mr. X, he told me, Mr. Pastor Henry, before you leave this Oakland city, I'm going to bless you something. I said, thank you, sir. You are a good man. और ये अगर एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि पासवान जी आप इस ऑकलैंड को छोड़ने से पहले मैं आपको आशीषित करने वाला हूँ, तो Thank मैं you. परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। But when I left Oakland, I never saw him. और जब मैं ऑकलैंड छोड़ रहा था मैंने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं। He's fine. I can't trust this man's words. Can I? और तब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस व्यक्ति के जो है वचन को या फिर उसके जो है शब्द को विश्वास कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। A person is identified by his words. और He speaks. एक व्यक्ति को उसके जो है वाक्यों से या फिर उसके शब्दों से समझा जा सकता है। If a person says something, if he does it, then I can trust him. अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है और अगर मैं उसको विश्वास कर सकता हूँ और वो तब मैं उसको जाकर विश्वास कर सकता हूँ अगर उस बात को वो पालन करता है। Jesus said, I am the truth. यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई हूँ, My words are the truth. मेरे वचन जो है वो सच है। To believe in Jesus is to believe his word. और जब मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ मैं परमेश्वर के वचन में भी विश्वास करता हूँ। So to believe in healing is to believe what his word said. और जब मैं परमेश्वर की चंगाई में विश्वास करता हूँ तब मैं परमेश्वर का वचन चंगाई के बारे में क्या कहता है उस पर विश्वास करता हूँ। So we are going to talk about his word today concerning healing. और आज जो है हम परमेश्वर का वचन चंगाई के तौर पर क्या कहता है उसके बारे में हम सीखेंगे। Now don't take me wrong, healing can happen in a number of ways. जो है चंगाई भिन्न भिन्न रीति पे हो सकती है। One way is laying on of hands. और एक उसका तरीका ये है कि हाथ रखकर उन पर प्रार्थना करना। One is by anointing with oil in the book of James chapter 5. और जो है याकूब के पुस्तक में जो है तेल से अभिषेक कर चंगाई के लिए प्रार्थना करना होता है। Other one is by praising and worshiping God. When God's power comes, healing takes place. और परमेश्वर की आराधना करना और जो है जब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर आता है वहां पर चंगाई महसूस होती है, वो एक तरीका है। Another way is when God does his healing his own way. और एक दूसरा तरीका ये है कि परमेश्वर अपने रीति में जो है उस चंगाई को वहां पर पास ऑन करते हैं। Example in John chapter 5, when the John chapter 5 healing in the pool of Bethesda. That man was sick for 38 years. You know, an angel came at a certain time to stir the water, and whoever jumped first was healed. और यूहन्ना के पुस्तक में हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो 38 साल से बीमार था और वो बेतसैदा के जो है करीब वो तालाब के करीब था और वो इस समय का वेट कर रहा था जब वो दूध वहां पर आकर वो पानी को फेरता है, उस पानी में उतर पाए। So those are things. This is one method God uses to do his job. He does his way of doing things. We can't question God. और ये भिन्न भिन्न रीति है जहां पर परमेश्वर अपने चंगाई को अपने लोगों के पास करते हैं, लेकिन हम जो है कोई नहीं है जो परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो किस प्रकार करने वाले हैं। Right, he does his way. There's another way of healing, right? But there's one way of healing. The other way of healing is where special spiritual gifts flow. और दूसरा एक रीति है जहां पर परमेश्वर की चंगाई को महसूस कर सकते हैं, वह वो है ये है जब पवित्र आत्मा की जो है भेंट वहां पर जो है फैलती है। It's the God of wisdom, knowledge, discerning of spirit. When the gifts start to flow, healing begins to happen. और जब वो ज्ञान का परमेश्वर और जब उनके भेंट जो है वहां पर फ्लो होने लगती है, वहां पर चंगाई महसूस होने लगती है। But what I'm telling you today is if you follow this method, you can get healed any place, anytime, anywhere in the world. लेकिन आज जब ये संदेश आपके साथ मैं बांट रहा हूँ तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हालत में आप हो, जब आप इस जो है तरीकों को उपयोग करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा दे सकता है। Which is believing God at his word. और उसका ये अर्थ है कि हम परमेश्वर को उसके वाक्य या फिर उसके शब्द पे विश्वास करते हैं। Believe what he said concerning healing. जो परमेश्वर का वचन है चंगाई के रिलेटेड उस पे विश्वास करना। Or any other thing that you want from God, if it's in the scriptures, you believe it. या फिर जो भी दूसरी चीज जो आप विश्वास करते हैं या फिर आप चाहते हैं उसके परमेश्वर का वचन अगर वो आपको अनिवार्य करता है तो उस पे विश्वास करना। First thing what I do, what I have learned and I'm studying in this area, if I want to be healed, I need to hear about healing. और इसका मेरे जीवन में जो है ये इस प्रकार मायने रखता है, अगर मुझे चंगाई प्राप्त करनी है तो मुझे चंगाई के बारे में वचन जानना जरूरी है। When I hear it, number 2, faith comes. और जब मैं वो वचन को सुनता हूँ तब मेरे अंदर वो विश्वास उत्पादित होती है। I want to ask you a question. I'm not testing you guys, but for the sake of learning, we ask questions. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। How do you receive anything from God? आप किस प्रकार कुछ भी चीज परमेश्वर के हाथ से प्राप्त करते हो? How? किस प्रकार? Yeah. Thank you for asking. Thank you. You are wonderful people.
All of you from Bombay, right? Okay, thank you. Wonderful. By asking, thank you. वो है परमेश्वर से पूछने से। But, well, my questioning was not that accurate. We receive anything from God by one method. हम परमेश्वर से हमेशा चीजों को इस प्रकार प्राप्त करते हैं, वो एक तरीके से है। Hebrews chapter 11 verse 1. इब्राहिम का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका पहला वाक्य। Without faith, it is impossible to please God. He who comes to God must believe He exists. He rewards those who diligently seek Him. Hebrews chapter 11 verse 1, then verse 6. और जो है विश्वास के बिना जो है हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Electricity is in this building. You can't see it, right? Can you see it? No. इस जो है मकान, इस बिल्डिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी है और हम उसको देख नहीं सकते। It's the God's power in the natural. और वो जो है God's power in the natural. और वो परमेश्वर का जो है सामर्थ्य है वो भी इस नेचर में हम देख सकते हैं। But in order for that power to be activated, we have to put the switch on. लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के पावर को महसूस करने के लिए ये स्विच को ऑन करना जरूरी है। Then you get the result of the light or और तब whatever. जो है उसका जो है फल ये होता है कि हम लाइट को देखते हैं। God's power in the supernatural has to be activated. और परमेश्वर की जो है वो सामर्थ्य को जो है परमेश्वर की जो शक्ति को है अपने जीवन में एक्टिवेट करना जरूरी है। And how do you do that? By faith. और वो किस प्रकार आप एक्टिवेट करते हैं वो आपके विश्वास के द्वारा करते हैं। And how does faith work? और फेथ विश्वास किस प्रकार काम करता है। Remember, with faith you can please God. और इस बात को याद रखिए कि आप विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। You say, I believe that I receive. आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पा रहा हूँ। Now, faith, how it works is more explained in Mark chapter 11 verse 22, 23. It talks how faith operates. अब मरकुस के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं विश्वास किस प्रकार से काम करता है। You have overhead to put the scripture down. If not, read Mark 11:23. मरकुस का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। Thank you, sister. Wow, praise the Lord. I can see the anointing on you. Amen. This is powerful. If anyone, right? Anybody can say whatever I call you, no problem. Say to this mountain. Remember, Jesus just cursed the fig tree. Fig tree is small compared to a mountain. The mountain is bigger. So Jesus is telling us there's a way to remove problems out of your life. And this is, you have to say to this mountain. It can be a mountain of problems. It can be a little mountain. Whatever it is bothering you, coming against you. But first thing you say, number two, there's no doubt in your heart. Heart is the place where you believe God. Where do you believe God to receive anything? In your heart. Say it, brother. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, वहां पर पहले बात जो हम देखते हैं वो बोलना है। And then do not doubt in your heart. और उसके बाद ये है कि हम अपने अंदर जो है वो डाउट को पैदा नहीं करें। What is the heart? Anybody give a guess? Number one, physical organ that pumps the blood. Number two, your body. Number three, your spirit. Number four, I don't know. और अपना हृदय को जो है भिन्न भिन्न रीति से देख सकते हैं। वो एक जो है आपको जो है आपके अंदर वो ब्लड फ्लो को करता है, जो आपके शरीर को चलाता है, ऐसे भिन्न भिन्न रीति में देखते हैं। So what do you say? आप क्या कहते हो हृदय क्या है? When Jesus said believe in your heart, what does it mean? Physical heart? Spiritual heart? Thank you, Pastor. Soul? Thank you. Anybody else? People of Delhi, Punjab, come on. You know, people of India are wonderful people. They're so kind, so loving. Especially Punjab, they're really wonderful people. Well, Mumbai is good too. And everybody is good, okay? Heart is not the physical organ where God lives. Don't make mistake. यहाँ पे जो वो हृदय है वो जो है फिजिकल चीज के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं। It's the spirit. वो जो है परमेश्वर की आत्मा है। Because if you say God lives in your heart, and if you are a Christian, Mr. X is a Christian in Auckland, New Zealand, his heart was taken out because he was in an accident, so he's a born-again Christian, and somebody in India
is not a Christian, so his heart goes to in his body, will that man become a Christian? मैं इसलिए ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो हृदय के बारे में बोला है वो जो फिजिकल के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक व्यक्ति कोई मर जाता है और उसके हार्ट को लेकर आप वो मसीह हो सकता है, अगर वो इंडिया में एक व्यक्ति के अंदर डाला जाता है तो वो व्यक्ति वहाँ पर इंडिया वाला व्यक्ति जो है कभी मसीह नहीं होता। See, that's not where God lives. God does not live in physical organs. He lives in your spirit, the inner person. You believe God in your heart. Praise God. इसलिए कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो फिजिकल हार्ट में नहीं है। Amen. There's no doubt in his heart, but believes those things which he says. लेकिन वो चीजों पे विश्वास करता है जो परमेश्वर कहते हैं। Believe those things which he says shall come to pass. और उस चीज पे भरोसा करना जो परमेश्वर कहते हैं हमारे जीवन में वो पूरी होने वाली है। Who gonna say it? कौन कहना चाहता है? आप लोग कहने वाले हो, Because it concerns you, right? क्योंकि वो आपको जो है अफेक्ट करने वाली चीज Your है। pastor can't do it, I can't do it, but I can pray for you. मैं आपके लिए उस शब्दों को बोल नहीं सकता, विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर कर Now, सकता when you हूँ। come for healing, while you're sitting down here, you say, Lord, I believe when the pastor prays for me, I will receive my healing. Now, your faith will activate the power of God in your life. और जब आप कहते हैं कि जब पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तब जाकर मैं जो है उस चंगाई को प्राप्त करने वाला हूँ। जब आप वो अपने मुंह से बोलते हैं तब आप वो फेथ को एक्टिवेट करते हैं। Now, when I lay hands upon you, और जब मैं अपने हाथों को आपके ऊपर रखता हूँ then you thank him and praise him. और तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति को करते हैं। But you must do one more thing. लेकिन एक और चीज आपको करना है। Open Mark 11:24. मरकुस का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। Open it, please. Come on, sister. Read it again. Loud and clear. Now, I'm teaching, but after some time, I'm going to switch to preaching. Now, it says over there, thank you, sister. Whatever you ask in prayer, क्या आपका मांगे? Whatever you need. Whatever जो भी आप मांगना चाहते हो, जो भी आप परमेश्वर से मांगते हो, Believe you received it. इस बात पर विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है। Now, when you gonna believe it? और अब आप भरोसा कब करने वाले हो? When I prayed for you, you believed it, and then you leave the building, you say, I believe God, you heard my prayer and answered my prayer. और जब मैं ये वचन को आपके साथ बांटता हूँ, जब आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तब आप यहाँ से लौट सकते हो, कह सकते हो कि मैंने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुनी है। And it will be yours or it will come. वो तुम्हें मिल जाएगा या वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। This is the method by you receive anything from God. और यही वो तरीका है जहाँ पर आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हो। Yeah, but pastor, I don't feel it. और आप कहेंगे कि पासवान जी मैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा, I don't see the answer. मैं वो चीजों को जो है उत्तर देख नहीं सकता। You see, these are physical senses. और ये जो है हमारे फिजिकल चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं। God does not work with your 5 physical senses. और परमेश्वर सिर्फ आपके वो 5 जो है सेंसरी ऑर्गन से ही काम नहीं करते। This is good for our earth to learning, studying, enjoying life. That's fine. और ये चीजें आपको इस दुनिया में जीने के लिए मदद करती है, बहुत शानदार है। But if you want to receive something from God, these 5 senses play a last role. और जब आपको परमेश्वर से कुछ चीज को प्राप्त करना है तो ये 5 सेंसेस जो है वो एकदम अंत में काम करती है, Because they keep changing. क्योंकि वो हमेशा बदलते रहती है। Who was the man who said, I'm not going to believe until I see it? Who was he? Thomas. John chapter 20 and verse 28 says, Thomas told the disciples, I'm going to believe until I see the nail print and the mark, then I'll believe it. हम थॉमस को देखते हैं जो हमेशा कहता है कि जब तक मैं उस हाथों को नहीं देखता जहां पर वो खीले ठोके गए थे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Because Thomas' 5 physical senses told him, Jesus is dead, he was crucified, he was there, he saw him dying. क्योंकि वहां पर थॉमस के 5 सेंसेस जो है उससे कह रहे थे कि यीशु मसीह मारा गए हैं और वो अभी भी मरे हुए हैं। But he did not realize that he told, I'll rise again. लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाया कि वो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं फिर से जी उठने वाला हूँ। So when Jesus came to Thomas 8 days later, इसलिए जब थॉमस के पास यीशु मसीह कुछ दिनों बाद वापस पेश आए, Thomas felt embarrassed and he was so sad. Lord, I'm sorry. और वहां पे थॉमस को देख सकते हैं वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वो परमेश्वर से माफी मांगता है। But Jesus didn't, beat him up to a silly boy. He said, Thomas, you believe because you saw me.
Blessed are those who believe in me without seeing. और वहां पे यीशु मसीह थॉमस को उठाकर कहते हैं कि तुमने मुझ पर विश्वास किया है क्योंकि तुमने मुझे देखा है, लेकिन वो धन्य है जो मुझे देखे बगैर मेरे पर विश्वास करते हैं। See, spiritual things walk without seeing. और आत्मिक चीजें जो है बिना देखे ही काम करती है। We walk by faith and not by sight. और हम जो है विश्वास के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, नजरों के साथ नहीं। But use wisdom, don't do things blindly. Use wisdom to do things. लेकिन जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उसका भी सही तरीके से उपयोग There was करें। another man in the Bible. His name was Abraham. और इब्राहिम नाम का भी एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में है। Romans chapter 4, verse 16 to 21. रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 16वें से वाक्य से आगे देख सकते हैं। Please, I want all of you to mark those verses, okay? Go home and do research and study on these areas. मैं चाहता हूँ कि आप इस जो है परमेश्वर के वचन को मार्क करिए और घर जाकर जो है उसमें अधिक पढ़ने की कोशिश It's कीजिए। powerful verses. It will lift you high in your spirit. और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं वो आपके आत्मा को जो है और उत्साहित कर सकती है और आगे बढ़ा सकती है। This man believed God without, it says in Romans chapter 4, verse 17. Please somebody open it. Romans 4:17. रोमियो का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 वाक्य। God who gives life to the dead and calls into being things that are not. In other words, he knows that God, the blessing that God has given to us is already there. But he has to call it into existence. और हम You यहाँ have to call it into existence. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो मनुष्य के बीच में ऑलरेडी है, लेकिन हमको जो है उसको बुलाकर ले आना है। And how do you do this? और ये आप कैसे कर सकते हो? I'm going to conclude with these few verses, okay? John chapter 10 says, the thief comes to steal, kill, and destroy. Don't have to mark those verses. 1 John 3:8 says, the Son of Man was manifested to destroy the work of the devil. And Acts 10:38, how God anointed Jesus, healed the sick, set the captives free. So you appropriate all these blessings with the scripture when you get involved in saying the same thing that God said. और जब आप ये वचनों को पढ़ते हो और जब आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हो, जो परमेश्वर का वचन है उसको जब आप दोहराते हो तो परमेश्वर के सामर्थ्य को आप वापस से बुला ले आते हो। Sickness does not come from God. जो बीमारी है वो परमेश्वर से नहीं आती। Sometimes it is malfunction of our bodies or lack of food and exercise. Sickness comes from the author who is Satan himself. और कई बार जो है बीमारी हमारे जीवन के जो है चाल चलन से कई प्रकार के जो है रीति से जो है आ जाती है, लेकिन ये बीमारी हमेशा जो है शैतान ले आती है। It is Adam's sin that led mankind into sickness and disease and death. हम देख सकते हैं कि आदम के जो है या फिर अपने पूर्वजों के जो पाप थे जिससे जहां से ये बीमारी शुरू हुई, जो पाप के कारण। Healing is in the plan of redemption. और जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से छुटकारा को पाते हैं। Healing belongs to you. और जो चंगाई है वो आपका जो है आपका जो अधिकार है। In order for you to be healed, और आपको चंगाई को प्राप्त करने के लिए you need to hear preaching on healing. और आपको जो है परमेश्वर के वचन को या फिर परमेश्वर के चंगाई के बारे में संदेश सुनना जरूरी है। You need to hear it often. और उसको कई बार सुनना जरूरी है। I hear this message a number of times throughout the week. और मैं ये संदेश को कई बार अपने जीवन में सुनता हूँ। If you need financial blessing, अगर आपको संपत्ति की जरूरत है, you need to hear about finances from the Bible often throughout your day so that your faith will come and you receive it by faith. आपको उस विषय में जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में सुनना जरूरी है, उसके बारे में जो है पठन करना बहुत जरूरी है। How do you receive your healing? आप अपने चंगाई को किस प्रकार पाते हो? Receive it by faith. आप जो है विश्वास के द्वारा पाते हो। Faith is the evidence or substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और विश्वास वो चीज है जो हम 11वां अध्याय पहले वाक्य में देखते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। What is evidence? The word of God is the evidence. यहाँ पर इसका सबूत क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। So you believe in your heart आप अपने दिलों में तो वो करते हैं and you will receive it. और जब आप दिल में पेश करते हो तब आप उसको अपने जीवन में पाओगे। Now here is the conclusion of my meeting. अब जो है इस संदेश के जो है अंत में इस बात को कहना चाहूंगा। If you want me to pray for you, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, whatever it is, चाहे वो कुछ भी हो, you believe in your heart आपको इस चीज को अपने जीवन में विश्वास करना जरूरी that है। as the pastor lays hands upon me this morning,
जैसे ही पासवान मेरे सर पर या फिर मेरे शरीर में हाथ लगाकर प्रार्थना करते हैं, I will receive my healing now. मैं अपने चंगाई को अभी प्राप्त करूंगा। You must say this, okay? आपको इस बात को कहना जरूरी है। When you say it, you release the power of God over your life. और जब आप इस बात को कहते हो तो आप परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जो है उसको एक्टिवेट करते हो। Before you come in the front for the prayer, अब आगे आने से पहले you need to forgive people. आपको जो है दूसरों को जो है माफ करना जरूरी है। If you haven't forgiven, then this prayer not going to work. अगर आप किसी को माफ करना बचा हुआ है तो शायद ये प्रार्थना आपके जीवन में काम भी नहीं कर सकता। Faith works by love. और जब जो है विश्वास जो है प्रेम के साथ काम करता है। Walk with God's principle. और जब हम परमेश्वर के प्रमाण में चलते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, It's by love that we walk with God. और हम प्रेम के द्वारा जो है परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं। Ill feeling, bitterness, resentment, hatred, jealousy, backbiting, criticizing, gossip. Stop it. Repent of the sin. अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप है किसी और के द्वारा या किसी और की तरफ, तो आपको उस चीज को पहले छोड़ना जरूरी है। Then you come and pray. और जब आप उस चीजों को छोड़ते हो, उसके लिए माफी मांगते हो और आप जब आगे आके प्रार्थना करते हो, Thank you, sir. God will deliver you. परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। Praise ye the Lord, for the Lord is good. His mercy endures forever. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि उसकी जो है करुणा वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। Please stand to your feet. हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you.